Hello students, you all are again most welcome in your on YouTube channel Preparation with RJ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ। ਸੌਰੀ ਫॉर ਡਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ ਜੋ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਰਿਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ 2021 ਐਗਜ਼ਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਮੈंने ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ, ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ RJ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਵਲ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ RK ਨਾਰਾਇਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 115 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ RJ YouTube ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ MCQs ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ 115 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 150 ਨੰਬਰ ਆਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਵਲ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ RK ਨਾਰਾਇਣ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾਈਡ। ਦਾ ਗਾਈਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਨੋਵਲ ਕਾਂਥਾਪੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਥਾਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੂਰਤੀ। ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਮੈंने ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਵਲ ਵੌਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈंने ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਵਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ੈਡੋ ਲਾਈਨ, ਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡ, ਕੂਲੀ ਐਂਡ ਦਾ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ। ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆ, 4-5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਵਿਚ ਨੋਵਲ ਮਨੋ ਮਾਜਰਾ ਇਜ਼ ਆ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਵਿਲੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਚ ਨੋਵਲ ਬਾਏ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਹੈਜ਼ ਬਖਾ ਦ ਸਵੀਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅਨਟਚੇਬਲ। ਅਨਟਚੇਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਮਸ ਦਾ ਜੋ ਆਥਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਕਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਮੇਜਰ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
when was the novel Kanthapura, when was the novel, just a minute, question number 8, when was the novel Kanthapura written, हाँ जी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, रिटन भी आएगा जी, नॉवल कांथापुरा जी कदों लिखा गया, हाँ जी तुहानू पता होना चाहिए जी जो नॉवल कांथापुरा यह बिफोर इंडिपेंडेंस, इसका आंसर आएगा बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ जी जिन्होंने पब्लिशिंग ईयर मैं अपलोड किए से देखे से उन्होंने लिए ईजी हो गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ट्रेन टू पाकिस्तान, हाँ जी ट्रेन टू पाकिस्तान द ऑथर कौन है जी, इज द राइट ऑथर है जी खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड ए के रामानुजन राइट पोइट्री, हाँ जी ए के रामानुजन ने जो किस लैंग्वेज दे विच पोइट्री लिखते सी, इंग्लिश एंड कन्नड़, इंग्लिश एंड कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the writer of poems A River and of Mother among other things, हाँ जी इन्हों के राइटर कौन से, ए के रामानुजन, ए के रामानुजन। 12th क्वेश्चन, इन विच नॉवल राजू एंड रोजी आर द मेन कैरेक्टर्स, हाँ जी राजू और रोजी किस दे विच मेन कैरेक्टर सी, आंसर आएगा जी द गाइड। हाँ जी देखो द गाइड तो क्वेश्चन आए ने इको एक वर्क दे विचों ही रिपीट कर रहे हैं बार बार ये एग्जामिनर ने जो सैट किया पेपर, हाँ जी द गाइड दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय अनीता देसाई, हाँ जी अनीता देसाई जी ने केड़ा नॉवल लिखा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन सी, ट्रेन टू पाकिस्तान भी सीगा, टू लीव्स एंड वर्ड्स भी, डार्क रूम भी सी, आंसर आएगा क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक। हु इज़ द फॉलोइंग ऑथर इज नॉन फॉर हिज जोक्स, हाँ जी केड़ा ऑथर है जो जोक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है जी, हाँ जी इसका आंसर आएगा जी खुशवंत सिंह, वंत सिंह जिमें संता बंता लिखा जी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क रविंद्रनाथ टैगोर गैट अ नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, हाँ जी मैं तुम्हें MCQ दे विच पाए सी, इंडियन राइटर दे विच दोनों क्वेश्चन, हाँ जी किस वर्क के लिए मिले सी जी उन्होंने, गीतांजलि ਲਈ, जस्ट मिनट, हाँ जी गीतांजलि ਲਈ रविंद्रनाथ टैगोर जी ਨੂੰ नोबल प्राइज है जो मिले सी। थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है राइट करने च, गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल हंगरी टाइड, हाँ जी हंगरी टाइड का नॉवल केड़ा जी, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। 17th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग नॉवल एंड कैरेक्टर अपीयर इन द दैम, हाँ जी ये इन्होंने मैं आंसर नहीं लिखे, ऑप्शन जस्ट फर्स्ट वाले लिखे ने, हाँ जी ये 17th क्वेश्चन है, ये है जी ट्रेन टू पाकिस्तान के सामने अलग अलग राइटर ने, इसका आंसर आएगा जी ए ऑप्शन है जी इसके है 4 2 1 3, इसका आंसर आएगा, हाँ जी मैं दस दिन बोल के, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है उस है जुगत सिंह कैरेक्टर, और जो कांथापुर है जी उस है कैरेक्टर मूर्ति, द गाइड उस है जी राजू, आप कर चुके हैं ऑलरेडी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अमू। देखो जी जेडे आ क्वेश्चन ने कांथापुरा वाला भी बैक क्वेश्चन आ चुके हैं, ही आ द गाइड का भी बैक आ चुका है, तो उन्हें देखा होगा कि मैचिंग ने काफ़ी ज़्यादा हैल्प की पेपर अटैम्प्ट करने नीयर अबाउट, ज़्यादा नहीं कह सकती मैं, अप्रॉक्स 10-12 क्वेश्चन के जो आंसर से जो पेपर के ही पे थे, अगर उत्थे नहीं क्वेश्चन आता तो इतने ऑप्शन, अगर उत्थे आता तो इतों ऑप्शन तो पता चल सकता सी। हाँ जी 18th क्वेश्चन, हाँ जी ये भी मैचिंग है जी, हाँ जी इस राइटर के नेम ने, इस सब तो पहले मैं आंसर दस देनी, इसका ऑप्शन आएगा बी, हाँ जी बी ऑप्शन की है जी 2 3 1 4, ये आंसर आएगा जी, हाँ जी इस मैं दस देनी कि केड़े केड़े आउणगे।
ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਂਥਾਪੁਰਾ। ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਦਾ ਗਾਈਡ। ਮੁਲਕ ਰਾਜਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਕੁਲੀ। ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦਾ ਗਾਈਡ, ਪਾਕਿस्तान और कांथापुरा। 90th क्वेश्चन, what name is given to the period from 1558 to 1603 in English literature? हाँ जी, इंग्लिश लिटरेचर ਦੇ ਵਿੱਚ 1558 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1603 ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। एलिजाबैथन एज। एज रिलेटेड भी क्वेश्चन आए ने इस बार हिस्ट्री रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो? क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा केड़ा वर्क लिखा गया? ऑप्शंस नेगे जो अदर ऑप्शन ने इस विच किंग लियर ते हैमलेट ही शेक्सपीयर दा नन ऑफ द अबव है नहीं जी। आंसर आएगा जी सी, डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। 21, इन विच ईयर डिड शेक्सपीयर डाई? हाँ जी, शेक्सपीयर की डैथ किहड़े ईयर दे विच हुई? मैं दस्सिया होया, ऑलरेडी अपलोड हैगी वीडियो। हाँ जी, शेक्सपीयर की डैथ हुई है जी 1616 दे विच, 1616 दे विच शेक्सपीयर की जो डैथ हुई है। नैक्सट क्वेश्चन, इन विच शेक्सपीयर प्ले ब्रूटस एंड मार्क एंटनी आर मेन कैरेक्टर? ब्रूटस ते मार्क एंटनी आ जो वो किस वर्क दे विच शेक्सपीयर दे विच मेन कैरेक्टर है जी? हाँ जी, इसका आंसर आएगा जूलियस सीजर। स्टूडेंट्स अपने मार्क्स जो आंसर की मैच करोगे तो जरूर दसना कमेंट करके कितने मार्क्स बने ने। हु इज़ द राइटर ऑफ द फेरी क्वीन? हाँ जी, फेरी क्वीन है जी वर्क है जो, उसका राइटर कौन है जी? आंसर आएगा इसका स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। 24th क्वेश्चन, हाँ जी, टू हुज रेन जैकोबियन पीरियड रेफर्स? हाँ जी, जैकोबियन पीरियड है जो किस रेन दे विच आंदा है जी? इसका आंसर आएगा जेम्स वन। हाँ जी, जेम्स वन तो ही जैकोबियन स्टार्ट होता है, जेम्स वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइम पीरियड डज जैकोबियन एरा इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू? हाँ जी, केड़े एरा नू मतलब कि ईयर पूछा गया गा? इसका आंसर क्या आएगा? 1603 तो लैके 25 तक। 1603 तो लैके 1625 तक का जो एरा गा उसनू जैकोबियन एरा कहा जाता है लिटरेचर दे विच। देखो जैकोबियन का भी आ गया, एलिजाबैथन एरा का भी आ गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन डन? हाँ जी, केड़ी पोइम है जी जो जॉन डन द्वारा नहीं लिखी गई? काफ़ी ऑप्शंस नेगे, द सनराइजिंग, द गुड मॉरो, द फ्ली। ये तिन्ने लिखिया गई ने। मैकफ्लैकनो आ जो इस दे विच ऑप्शन है जी वो इन्हां द्वारा नहीं लिखी गई, डन द्वारा नहीं लिखी गई, मैकफ्लैकनो। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। 27, हु हैज़ रिटन पैराडाइज रीगेन्ड? हाँ जी, पैराडाइज रीगेन्ड किन्हां द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन। For the poetic technique, which poet used the term conceit usually used? हाँ जी, conceit term है जी किस द्वारा यूज की गई हैगी? 28th क्वेश्चन, हाँ जी, इसका आंसर आएगा जॉन डन। टर्म्स टाइम मैंने पूछा भी सीगा कि कंसीट टर्म किस द्वारा यूज की गई है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने जी कमेंट किया होया सीगा, सही कमेंट सीगा। पेपर से भी सेम क्वेश्चन आ गया। हाउ इज़ द पोम एब्जोलम एंड एचिटोफल बेस्ट डिस्क्राइब्ड? एब्जोलम और एचिटोफल नू किस तरह बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है? हाँ जी, इसका आंसर आएगा जी एलैग्रिकल एंड एलैग्रिकल satire and allegorical satire. Next, which of the following plays is written by John Ben Jonson? हाँ जी, केड़ा प्ले है जो बैन जॉनसन द्वारा लिखा गया? ऑप्शन सी अगे टेम्पेस्ट, ओथेलो, एडवर्ड सेकंड, ये तो पता ही है कि शेक्सपीयर द्वारा लिखे गए ने। हाँ जी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन in his humor. Which poem of John Donne begins with the line "Boys, old fool, busy"?
ਬਿਜ਼ੀ ਓਲਡ ਫੂਲ, ਅਨਰੂਲੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਦ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਮ ਤੋਂ, ਦ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਮ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। with which dramatist the term comedy of humor is associated? comedy of humor किस comedy of humor किस dramatist ਨਾਲ refer ਕਰਦੀ ਹੈ, किस dramatist ਦੀ ਨਾਲ belong ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ, ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ। In which poem does John Donne compare an insect to a temple lover? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਫਲੀ। ਦਾ ਫਲੀ ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਇਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੋਇਮ ਹੈ। Who is the writer of sonnet on his blindness? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ on his blindness ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੋ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਪੋਇਮ, ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। Who declares in Paradise Lost that better to reign in hell than to serve in heaven? ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੈਟਨ ਦੁਆਰਾ। ਮਿਲਟਨਸ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਲੋਸਟ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਲੋਸਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਨ ਐਪਿਕ। ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰਾਊਨਿੰਗ ਆਫ। ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜੇਮਸ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜੇਮਸ ਵਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਰਾਊਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਚਾਰਲਸ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ, ਚਾਰਲਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਥੀਏਟਰਸ ਰਿਮੇਨ ਬੈਨ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰਸ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 12 ਈਅਰਸ ਲਈ ਫਰੋਮ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ 1648 to 1660। ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਥਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਆਥਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇਗੇ, ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ 39th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ, 39 ਦਾ ਆਏਗਾ ਏ 4132। ਹਾਂਜੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 4132 ਮਿਲਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਲਿਸੀਡਸ, ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾਲਪਨ, ਡਰਾਈਡਨ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਬਜ਼ੋਲਮ ਐਂਡ ਐਚੀਟੋਫਲ, ਔਰ ਮਾਰਲੋ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਫਾਸਟਸ। ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ 40th ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2 1 4 3। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਲੋਸਟ, ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਲੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ? ਸੈਟਨ ਸੀ। ਵਾਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ? ਮੌਸਕਾ ਸੀ। ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਂਟਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਡੀਲੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਥਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਅਗਸਤਨ ਏਜ? ਹਾਂਜੀ ਅਗਸਤਨ ਏਜ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੌਪ ਐਂਡ ਸੈਮੂਅਲ ਰਿਚਰਡਸਨ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਸਤਨ ਏਜ ਤੋਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਫੀਚਰ ਆਫ ਅਗਸਤਨ ਏਜ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ? ਹਾਂਜੀ ਅਗਸਤਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੈਟਾਇਰ, ਸੈਟਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਆਫ ਦਾ ਰੇਪ ਆਫ ਦਾ ਲੌਕ? ਰੇਪ ਆਫ ਦਾ ਲੌਕ ਦੀ ਜੋ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਲਿੰਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਪੋਮ ਦ ਰੇਪ ਆਫ ਦਾ ਲੌਕ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਰੇਪ ਆਫ ਦਾ ਲੌਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪੋਇਮ ਹੈ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੌਪ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਲੀਵਰਸ ਟਰੈਵਲ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਸਵਿਫਟ, ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਦੁਆਰਾ ਗੁਲੀਵਰ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 46th ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 2 4 1 3।
हाँ जी मैं दस दिनी जी तुहानूं। इस दे सामने इन्हां दे वर्क लिखे हुए ने गे। जोसफ एडिसन, जोसफ एडिसन इसका जो वर्क हैगा ये आएगा द स्पैक्टेटर। अलैगजेंडर पॉप उसका आएगा द रेप ऑफ द लॉक। जोनाथन स्विफ्ट आएगा गुलिवर्स ट्रैवल और सैमुअल रिचर्डसन आएगा पैमिला। सारे वर्क तो मैं पहला दसे हुए ने जो MCQ अपलोड किए सी वीडियो। नोवल पैमिला इज रिटन बाय, हाँ जी हुणी करके हटियांगे आप। नोवल पैमिला किन्हां द्वारा लिखा गया है? सैमुअल रिचर्डसन द्वारा। मैचिंग के विच उपर करके हटे हैं। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉक एपिक पोम। हाँ जी इस दे विचों किहड़ी मॉक एपिक पोइम हैगी? इसका सही आंसर आएगा रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is distinctive of an epistolary novel। हाँ जी epistolary novel की हुंदा लैटर फॉर्म दे विच हुंदा गा। हाँ जी इस दे विच जो ऑप्शन सी पेपर दे विच इन्हां ने लिखा होया गा कंसिस्ट ऑफ लैटर्स। ये इसका सही आंसर है कंसिस्ट ऑफ लैटर्स। थोड़ा जिहा लाइन नूं मोल्ड कर दिंदे ने ये कंसिस्ट ऑफ लैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम जॉन्स इज अ नॉवल रिटन बाय। टॉम जॉन किस द्वारा लिखा गया है? टॉम जॉन इज रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। मास्टरपीस ऑफ हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफिया वेस्टर्न, टॉम, स्क्वायर आलवर्ती आर कैरेक्टर इन। हाँ जी ये तीनों करैक्टर किस वर्क दे ने? हाँ जी इसका आंसर आएगा सही टॉम जॉन्स। द पिकारो द मेन कैरेक्टर इन पिकर्सक्यू नॉवल इज। हाँ जी एक की चीज़ हैगी 52nd क्वेश्चन है जो पिकारो आ जो पिकर्सक्यू नॉवल ने जो एक टर्म है पिकर्सक्यू नॉवल होंगे ने उस दे विच की है ये एक है इसका अ लवेबल वॉग्यू। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू। हाँ जी हिस्टरी के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। हाँ जी इस दे लिए मेन तो पता चलेगा ऑप्शन इस दे अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी एंड लेट 18th सेंचुरी, नन ऑफ द अबव। हाँ जी जे तो इसकी डेट पता की फिर ही तो सेंचुरी पता होएगी। इसकी डेट है जो 1798 टू 1837 तक। हाँ जी तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा अर्ली 19th सेंचुरी। देखो जी ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਸੀਗਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ अर्ਲੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ। Songs of Innocence and Experience is written by। हाँ जी Song of Innocence and Experience is written by आंसर आएगा इसका विलियम ब्लेक। ये ब्लेक द्वारा लिखा गया। कुबला खान इज फेमस पोम रिटन बाय। हाँ जी मास्टरपीस है जी ये। हाँ जी ये किसका वर्क है जी? कुलरीज का। ST कुलरीज का ये मास्टरपीस है कुबला खान। लूसी ग्रे इज अ पोम रिटन बाय। हाँ जी लूसी ग्रे पोम है जो किस द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आएगा जी विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेड्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स रिटन बाय। हाँ जी लिरिकल बैलेड्स का जो कलेक्शन ऑफ पोइम है किस द्वारा लिखी गई है? हाँ जी कोलैबोरेशन दे विच लिखी गई सी, लिखी गई सी विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ST कोलरिज। ST कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। बहुत ज़्यादा फेमस कोटेशन है जी किस द्वारा लिखी गई है? ये पोइटिक लाइन है किस द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है जी जॉन कीट्स द्वारा। Which of the following poets were which of the following poets was an opium addict। हाँ जी अफीम का एडिक्ट कौन सी? ओपियम का एडिक्ट केड़ा राइटर सी पोइट सी? सही आंसर आएगा जी इसका ST कुलरिज। opium addict। Move to next question, which of the following novels is not written by Jane Austen। हाँ जी केड़ा नॉवल है जो जेन ऑस्टिन द्वारा नहीं लिखा गया? हाँ जी ऑप्शन सी थोड़े प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये भी लिखा गया है ऑस्टिन द्वारा, एमा भी लिखा गया, सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी लिखा गया और लास्ट जो बच गया वो इन्होंने द्वारा नहीं लिखा गया। राइट आंसर है जी इवान हो।
बाकी 3 जेन ऑस्टन द्वारा लिखे गए ने। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। सर वॉल्टर स्कॉट इज़ नोन फॉर, ये तो ऑप्शन तो बिना ही पता चल जाएगा। सर वॉल्टर स्कॉट किस चीज़ ਲਈ फेमस है? अपने हिस्टोरिकल नॉवल्स ਦੇ ਲਈ। हाँ जी, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੋਵਲਸ, ਐਪਿਸਲਰੀ ਨੋਵਲਸ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੋਮਾਂਸਿਸ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੋਮਾਂਸਿਸ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੋਮਾਂਸਿਸ, ਵਾਲਟਰ ਸਕॉट। ਨੈਕਸਟ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਵਰਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 62 ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਸੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। 1 4 2 3 ਇਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ, ਮੇਜਰ ਵਰਕ ਕਿਸ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਟਨ ਐਬੇ, और लॉर्ड बायरन द्वारा लिखा गया डॉन जॉन, जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया ऑड टू ऑटम और पीवी शैली द्वारा लिखा गया ऑड टू द बेस्ट फ्रेंड। हाँ जी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है इस जॉन कीट्स और पीवी शैली दे, क्योंकि दोनों ने ऑड लिखे हुए हैं। तो ऑड टू ऑटम है जो जॉन कीट्स का और ऑड टू द बेस्ट फ्रेंड पीवी शैली द्वारा लिखा गया। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय लॉर्ड बायरन। हाँ जी ਕਿਹੜਾ वर्क है जो लॉर्ड बायरन द्वारा नहीं लिखा गया? हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ऑप्शन ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ शी वॉक्स इन ब्यूटी लॉर्ड बायरन द्वारा ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, और नैक्सट ਸੀਗਾ चाइल्ड हारोल्ड पिलग्रिमेज, ਇਹ भी लिखा गया बायरन द्वारा, और डॉन जॉन भी लिखा गया। लास्ट जो बचता इस द्वारा नहीं लिखा गया फ्रैंकनस्टाइन, फ्रैंकनस्टीन, फ्रैंकनस्टीन है जो मैरी शैली द्वारा लिखा गया। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिजी एडोनिस इज रिटन बाय। हाँ जी बहुत ज़्यादा फेमस एलिजी आ किस द्वारा लिखी गई है जी? इसका सही आंसर आएगा ये लिखी गई हैगी पीवी शैली द्वारा, पीवी शैली द्वारा। हाँ जी इन्होंने रिटन बाय पूछा, वैसे इस कन्फ्यूजन से स्टूडेंट को। रिटन बाय पीवी शैली है किस द्वारा, किस ਲਈ लिखी गई है? जॉन कीट्स ਲਈ लिखी गई है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये कोटेशन है जी किस राइटर द्वारा लिखी गई है? ये भी लिखी गई है पीवी शैली द्वारा। फेमस कोटेशन बाय पीवी शैली। द नॉवल द मॉन्क इज रिटन बाय। हाँ जी मॉन्क राइटर किहड़ा ने? मॉन्क के नाम नाल फेमस ने जिहड़े, उन्होंने द्वारा यह नॉवल है जो लिखा गया। इसका आंसर आएगा मैथ्यू ग्रैगरी लेविस, लेविस द्वारा यह लिखा गया नॉवल है। अबोव एडम इज अ पोम रिटन बाय। हाँ जी ये पोम है जो किस द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है जी ली हंट, ली हंट द्वारा ये पोम लिखी गई। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इज मेनली रिगार्डेड एज। हाँ जी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, हाँ जी उन्होंने राइटिंग्स तो ही तुहानूं पता लगता है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है जो किस चीज़ लिए लिख रहे हैं। वो उन्होंने जो वर्क ने उन्होंने पाइनियर हैगे ने वो फैमिनिस्ट फिलोसफर दे। तो बी आंसर सही है जी पाइनियर फैमिनिस्ट फिलोसफर। नैक्सट क्वेश्चन मैचिंग है। हाँ जी इस दे विच राइटर दिते हुए ने ली हंट, मैथ्यू ग्रैगरी लेविस, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरी शैली। हाँ जी इस दे जो बुक्स ने पहला इसका मैं सही आंसर दसदा तुहानूं कि इसका सही आंसर आएगा जी ए इज राइट आंसर। ऑप्शंस ने ए दे 2 3 1 4। हाँ जी तुहानूं इस दे वर्क दस देने मैं किहड़े किस दे नेगे। हाँ जी इस दे वर्क ने जो ली हंट द्वारा लिखा गया हैगा दी स्टोरी ऑफ रिमिनी, और आफ्टर दैट लेविस द्वारा जो लिखा गया द मॉन्क। हुणी करके हटे लास्ट क्वेश्चन आप लास्ट 2 क्वेश्चन। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा की लिखा गया अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, दसिया सी वीमेन ही लिखते हैं। और मैरी शैली द्वारा लिखा गया गा फ्रैंकनस्टीन, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच नॉवल ऑफ जेन ऑस्टिन एलिजाबैथ बेनेट एंड डार्सी आर सेंटर कैरेक्टर। हाँ जी जेन ऑस्टिन के किहड़े वर्क दे विच एलिजाबैथ ऑस्टिन एंड एलिजाबैथ बेनेट एंड डार्सी और जेन ऑस्टिन के नॉवल के जो मेन कैरेक्टर ने जिन्होंने आप कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट ने वो हैगे ने, आंसर आएगा प्राइड एंड प्रेजुडाइस दे विच, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। नैक्सट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग टू विक्टोरियन पीरियड। हाँ जी, किहड़े ऑथर ने जो विक्टोरियन पीरियड नाल बिलोंग करते हैं? राइट आंसर है तुहाडा रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। हाँ जी, इसके ऑथर कौन ने जी? इसका सही आंसर है जी थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी इसके ऑथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोम इन मेमोरियम इज रिटन बाय। हाँ जी, इन मेमोरियम जो पोइम है वो किस द्वारा लिखी गई है जी? अल्फ्रेड टेनिसन द्वारा। थोड़े जो मैं MCQ सेंड किए ने उन्होंने सारे वर्क है ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम इज रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। हाँ जी, इन्हों के किहड़ी पोम है जो अल्फ्रेड टेनिसन द्वारा लिखी गई है? हाँ जी, इस है जी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड written by Tennyson. Next, which of the following poets often use dramatic monologue as a poetic technique? हाँ जी, किहड़े राइटर ने ड्रामेटिक मोनोलॉग टेक्नीक नू यूज किया है पोइटिक टेक्नीक नू? हाँ जी, इसका सही आंसर है जी ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा ये टेक्नीक है जो यूज की जाती है गई है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 76, ग्रामेरियन फ्यूनरल इज अ पोम रिटन बाय। इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा ये पोम है जो लिखी गई है, ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोज एंड हीरो वर्शिप इज वर्क रिटन बाय। हाँ जी, थॉमस कार्लाइल द्वारा। मैचिंग, हाँ जी 78 मैचिंग है, इज द राइट आंसर है जो ए ऑप्शन है। 4 3 2 1। हाँ जी, मैं तुहानूं इसके आंसर दस दिंदी हाँ किस नाल किहड़ा मैच करता। हाँ जी, थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल द्वारा लिखा गया गा। हाँ जी, थॉमस कार्लाइल द्वारा लिखा गया हुणी करके हटे आप हीरोज एंड हीरो वर्शिप। और जॉन रस्किन द्वारा लिखा गया अनटू दिस लास्ट। आफ्टर दैट वॉल्टर पेटर द्वारा लिखा गया द रेनेसेंस। और एमली ब्रॉन्टे द्वारा लिखा गया वुदरिंग हाइट्स। सारे मेजर वर्क ने इन्होंने राइटर्स दे। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक इज अ मूवमेंट एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ। हाँ जी, ये मूवमेंट किस दे आइडिया दे उपर एसोसिएट कर दी है? हाँ जी, इसका सही आंसर है जी वॉल्टर पेटर। वॉल्टर पेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज रिटन बाय शार्लॉट ब्रॉन्टे। हाँ जी, शार्लॉट ब्रॉन्टे द्वारा केड़ा नॉवल है जो लिखा गया है? हाँ जी, इसका सही आंसर आएगा जी जेन आयर। जेन आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीथक्लिफ इज द सेंटर कैरेक्टर इन द नॉवल। हीथक्लिफ हाँ जी किस नॉवल का सेंटर कैरेक्टर है? सही आंसर है जी वुदरिंग हाइट्स। किया सी जी आपने ओनली नॉवल बाय एमली ब्रॉन्टे वुदरिंग हाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन। हाँ जी, केड़ा वर्क चार्ल्स डिकन द्वारा नहीं लिखा गया? प्रीवियस क्वेश्चन के ही करके हटियांगे आप जेन आयर है जो शार्लॉट ब्रॉन्टे द्वारा लिखा गया। इस जेन आयर ऑप्शन है, इट मीनस इसका आंसर क्या आएगा? जेन आयर। ब्लीक हाउस लिखा गया चार्ल्स डिकन द्वारा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा गया है। आ क्रिसमस कैरोल लिखा गया, इट मीनस सही आंसर इज द जेन आयर। ये लिखा गया जी शार्लॉट ब्रॉन्टे द्वारा। मैचिंग, हाँ जी इस वर्क दिते हुए नेगे और वर्क दे आपाने इस की दसने ने उन्होंने कैरेक्टर दसने नेगे। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर नोट कर लो, बी आंसर है ऑप्शन इज द आंसर है 4 1 2 3। हाँ जी, वुदरिंग हाइट्स है जो उसदे विच मेन कैरेक्टर है हीथक्लिफ। प्रीवियस क्वेश्चन करके हटे आप। उस तो बाद ग्रेट एक्सपैक्टेशन का कैरेक्टर है पिप। आफ्टर दैट मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, हाँ जी इसका राइटर है माइकल हैंचर्ड। और मिल ऑन द फ्लॉज है मैगी टुलिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी एन एवॉन्स इज मैरी एन एवॉन्स
wrote novels under the pen name? हाँ जी ਕਿਹੜੇ pen name ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਲਿਖੇ ਨੇ? हाँ जी ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਪ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਲਾਸਟ 83rd ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵੈਸੈਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੀ ਨੋਵਲਸ ਰਿਟਨ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੈਕਸ ਕਿਸ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਜੇਮਸ ਜੋਇਸ ਸੀ ਜੋ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਵੈਸੈਕਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਥਾਮਸ ਹਾਰਡੀ ਦੀ। ਥਾਮਸ ਹਾਰਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਟਨ ਬਾय ਜॉर्ज एलियट। हाँ जी जॉर्ज एलियट द्वारा ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? हाँ जी ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਐਡਮ ਬੇਡੇ। ਐਡਮ ਬੇਡੇ written by George Eliot। हुडीब्रास is a satirical work written by। हाँ जी हुडीब्रास किस द्वारा लिखा गया? सैमुअल बटलर द्वारा। सैमुअल बटलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डबर बीच is a famous poem written by। राइटर्स आंसर है जिसका मैथ्यू आर्नल्ड। which of the following poem written by मैथ्यू आर्नल्ड? केड़ी पोइम है जी मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर है द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी written by मैथ्यू आर्नल्ड। study of poetry is an essay written by। study of poetry is an essay written by मैथ्यू आर्नल्ड। इसका आंसर भी है जी आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा लिखे गए 3 क्वेश्चंस मैथ्यू आर्नल्ड चो आए ने। नैक्सट वाइव्स एंड डॉटर्स जिसका सब टाइटल है एन एवरीडे स्टोरी इज अ नॉवल रिटन बाय। हाँ जी मैं तुहानूं कराया सीगा ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवाए हुए ने राइटर भी दसे सी किसका वर्क है। हाँ जी ये हैगा जी गास्कल का। ये हैगा अपना एलिजाबैथ गास्कल का जो वर्क हैगा मास्टरपीस है उन्होंने। नैक्सट द वेस्टलैंड इज अ पोम रिटन बाय। हाँ जी पहला करके हटिया काफ़ी पिछे सी क्वेश्चन जिस दे विच मैचिंग सी उस दे विच वेस्टलैंड का आपां कीता गा और टू द वेस्टलैंड। हाँ जी ये टी.एस. एलियट द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। हाँ जी केड़ा नॉवल है जो वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखा गया? हाँ जी इसका सही आंसर है जी मिसिस डैलोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी.एस. एलियट वर्क मर्डर इन द कैथेड्रल इज। हाँ जी टी.एस. एलियट का जो वर्क है मर्डर इन कैथेड्रल इसका जॉनर की है किस टाइप का जी? ये हैगा पोइटिक प्ले। पोइटिक प्ले। इन विच पोम टी.एस. एलियट द लाइन दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ विंपर। हाँ जी ये लाइन टी.एस. एलियट के किस वर्क दे विच आई आ? हाँ जी द हॉलो मैन दे विच। 96 का राइट आंसर है जी द हॉलो मैन। द हॉलो मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वाज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप। हाँ जी केड़े ऑथर ने जो ब्लूम्सबरी ग्रुप नाल बिलोंग करते हैं? राइट आंसर है इसका वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इंप्लॉयज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनैस टेक्नीक। हाँ जी ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनैस टेक्नीक है जो किस नॉवल दे विच यूज़ की गई हैगी? हाँ जी हुणी करके हटे आपां भी ब्लूम्सबरी दे विच वर्जीनिया वुल्फ रिलेटेड है और सेम एज ये भी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनैस टेक्नीक हैगी ये भी वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस द्वारा यूज़ की गई है। इट मीनस इस दे विच जो जेम्स जॉयस का वर्क नहीं है तो सैकेंड की बचता है वर्जीनिया वुल्फ का वर्क मिसिस डैलोवे। कई क्वेश्चन ने जो ट्रिकी भी होंगे ने गे। हाँ जी नैक्सट इन विच ऑफ द फॉलोइंग
novels Malabar Cave serves as an important location। हाँ जी, Malabar Cave किस वर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਪੈਸਿਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਬਾਰਾਵਰ ਕੇਵ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸਿਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਆ ਪੈਸਿਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, who is the author of novels Sons and Lovers and Rainbow? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ D.H. Lawrence। Next question, in which content most of the action in the novel Heart of Darkness takes place? हाँ जी, Heart of Darkness है जो ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਸਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਫਰੀਕਾ। Africa is the right answer. Next question, who is the author of the novels A Portrait of the Artist as a Young Man and Ulysses? हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਮੇਜਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਵਰਕਸ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇਮਸ ਜॉयस। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 103 मैचिंग है जी। इसका जो राइट आंसर हैगा ए ऑप्शन वाला। हाँ जी, जस्ट मिनट, ए वाला, हाँ जी, उसके ऑप्शन जो ने राइट कर लो 3 2 1 4। हाँ जी, इस दे विच इन्होंने दिते हुए ने वर्क ते उन्होंने दे राइटर दसने ने अपने। सन्स एंड लवर्स हुनी करके हटे आप D.H. लॉरेंस, अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर, यूलिसिस हुनी कीता है जेम्स जॉयस, और लॉर्ड जिम जोसेफ कॉनर्ड। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, 104 क्वेश्चन ये सेम एज मैचिंग है जी। हाँ जी, इस दे विच कैरेक्टर दसे हुए ने आपां नूं। हाँ जी, कैरेक्टर दसे हुए ने आपां दसना जी किहड़ा कैरेक्टर किस राइटर द्वारा यूज़ किया गया। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हैगा वो हैगा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी 4 1 2 3। हाँ जी, देखते हैं जी। हाँ जी, जो कुड्स है, जो कर्ड्स है, कर्ड्स राइटर है जो किस द्वारा यूज़ किया गया? जोसेफ कॉनर्ड द्वारा। जोसेफ कॉनर्ड की मैं डिटेल सेंड की हुई है तुहानूं चैनल पर, उस दे विच कीता होया आपां कर्ड्स जोसेफ कॉनर्ड द्वारा। प्रोफैसर गॉडबोर्न ये कैरेक्टर यूज़ किया गया E.M. फोस्टर द्वारा। सेप्टिमस यूज़ किया गया गा वर्जीनिया वुल्फ द्वारा, और स्टेफन डेडालस यूज़ किया गया गा जेम्स जॉयस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम इज नॉट रिटन बाय W.V. यीट्स? केड़ी पोइम है जी जो W.V. यीट्स द्वारा नहीं यूज़ की गई? हाँ जी, इसका राइट आंसर है जी 105 क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हैगा जर्नी ऑफ द मगई। हाँ जी, जर्नी ऑफ द मगई जो वर्क हैगा ये लिखा गया T.S. एलियट द्वारा। द लेक ऑफ आइल ऑफ इंसफ्री ये यूज W.V. यीट्स द्वारा लिखा गया। सेलिंग ऑफ विजेंटियम भी, लेडा एंड द स्वैन भी, जर्नी ऑफ मैगी है जो वो T.S. एलियट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोम ऑफ W.V. यीट्स फेमस पोइटिक लाइन? हाँ जी, लाइन ने कोटेशंस काफ़ी ने पेपर्स। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity is taken। हाँ जी, ये लाइन जो कोटेशन है किस वर्क दे विचों ली गई हैगी? हाँ जी, इसका आंसर हैगा जी, राइट आंसर है द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग, मास्टरपीस ऑफ W.V. यीट्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले G.V. Shaw हैज़ कैरेक्टर्स प्रोफैसर हैनरी हिगन्स एंड एलिजा डॉलिट? हाँ जी, ये G.V. शाह दे किस वर्क दे विच ये कैरेक्टर ने? हाँ जी, इसका राइट आंसर हैगा पिगमैलियन। पिगमैलियन दे विच ये दोनों कैरेक्टर ने जो G.V. शाह ने
यूज़ किते ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले 108, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले द बर्थडे पार्टी। हाँ जी, इसदा मैंने अपलोड की हुई है वीडियो पहले ही। हाँ जी, इसके जो राइटर ने 108 दे राइट आंसर है जी हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर 108 मैचिंग है। हाँ जी, इस दे विच आपां नूं मैचिंग दे विच राइटर्स दे नेम दिते हुए नेगे और आपां ने दसना गा इस दे विच किहड़ा वर्क किस राइटर दा गा। इसदा जो राइट आंसर हैगा वो है डी 4 3 2 1। हाँ जी, मैचिंग करते हैं। जी.वी. शॉ द्वारा वर्क लिखा गया द डॉक्टर डेलिमा और सैमुअल बैकेट द्वारा लिखा गया वेटिंग फॉर गॉडॉट। डब्ल्यू यीट्स द्वारा लिखा गया द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर और हैरोल्ड पिंटर द्वारा हुनी करके हटे द बर्थडे पार्टी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 110। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले गोगो एंड दीदी आर मेन कैरेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। हाँ जी 110। हाँ जी, किस वर्क दे विच है जो गोगो ते दीदी कैरेक्टर ने। हाँ जी, इसका सही आंसर हैगा वेटिंग फॉर गॉडॉट। हाँ जी, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। ये तुहानूं वर्क मैं MCQ दे विच सेंड किया होएगा। हाँ जी, किस द्वारा लिखा गया I.A. रिचार्ड्स द्वारा। I.A. रिचार्ड्स, सेम क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हुए हुए ने। नैक्सट, हु इज़ द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक 7 टाइप ऑफ एम्बीगिटी। हाँ जी, मैं तुहानूं पेपर मॉक टैसट दे विच भी आए सी उस दे विच भी दस्सिया सी पन जो पन यूज़ की गई सी एम्बीगिटी यूज़ की गई सी किस द्वारा, जिस दे विच मैं दस्सिया सी 7 टाइप ऑफ एम्बीगिटीज़ ने गया। इसका राइट आंसर है जी विलियम एम्पसन द्वारा 7 टाइप ऑफ। मैं तुहानूं कहा सीगा भी पक्का आएगा एक क्वेश्चन आएगा भी एम्बीगिटी रिलेटेड ही है इसका। सेम राइटर का नेम पूछ लिया इन्होंने। What school of criticism was inspired by the ideas of T.S. Eliot and William Emerson in the early 20th century। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हैगा न्यू क्रिटिसिज्म। हाँ जी, न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म हैगी उस क्रिटिसिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर सी ये बाय आइडियाज। हाँ जी, इसका राइट आंसर है जी न्यू क्रिटिसिज्म, स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म जो इंस्पायर सीगे T.S. एलियट एंड विलियम एम्पसन। नैक्सट क्वेश्चन है जी मैचिंग है, राइटर्स के नेम ने गे। हाँ जी, जो सारे राइटर ने गे ये कंटैंपरेरी एज दे ने। इसका जो राइट आंसर हैगा ए ऑप्शन है जी, इसका राइट आंसर ए 4 2 3 1। हाँ जी, मैचिंग करते हैं। सामने इन्हों के है वर्क स्टीवी स्मिथ। हाँ जी, स्टीवी स्मिथ का जो वर्क है नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग। फिलिप लार्किन का जो वर्क हैगा इस दे विच हाँ जी सैकेंड नाल मैच होएगा डिसैप्शंस। आफ्टर दैट सैमस हीनी का वर्क है जी डिगिंग। टेड ह्यूज का वर्क है द थॉट फॉक्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज लाइब्रेरियन। हाँ जी, इन्हों के विचों केड़ा राइटर है जो लाइब्रेरियन हैगा जी 115 का राइट आंसर है जी फिलिप लार्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रॉट अबाउट आयरिश नैशनल एंड वीमेन इशू। हाँ जी, आयरन नेशन के बारे तो वीमेन्स के इशू बारे केड़ा राइटर है जी पोइट है जिन्होंने राइट किया गा। इसका राइट आंसर हैगा जी इवान बोलैंड। इवान बोलैंड। What is 14 line poem with the strict rhyme scheme called। हाँ जी, किया सी आपां ने टर्म्स दे विच की कहा जाता 14 लाइन की जो पोम होंगी उस टाइम मैं क्या सीगा तुहानूं बहुत ईजी क्वेश्चन लगता है भी कहोगे इन्ना ईजी आ मोल्ड करके क्वेश्चन आ चुके सोनेट इज द राइट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये टर्म्स ने जो सारिया कराइया हुई ही ने ऑलमोस्ट एक दो टर्म छड़ के। What a poetic composition called
in which one person talks to his listener who don't speak but their presence can be felt। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग उत्थे तुहानूं दस्सिया सीगा ये मोल्ड करके क्वेश्चन नूं पा सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, प्लैजरेबल पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत ज़्यादा सौखा जो टर्म इन्होंने दी हुई हैगी, ये किहड़ी टर्म है जी? उस टाइम भी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो दो इकट्ठे वर्ड्स आ जान एक दूसरे के ओपोजिट होण। हाँ जी, प्लैजरेबल भी हो गया, पेन भी हो गया। इट मीन जो इसका राइट आंसर की आएगा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट 120, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। वॉट अ फिगर ऑफ स्पीच इज फ्रेज बेड ऑफ रोजेस। हाँ जी, बेड ऑफ रोजेस जो है उसदे विच किहड़ी टर्म यूज की गई है, किहड़ी फ्रेज हैगी? हाँ जी, इसका राइट आंसर है जी मैटाफर। अगर इस विच लाइक लिखा होंदा एज होंदा फिर सिमिली हो सकती सी, बट ये मैटाफर है। हाँ जी, नैक्सट, वट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड वेयर अ पार्ट रिप्रजेंट द होल। हाँ जी, इसका राइट आंसर की आएगा जो एक पार्ट है जो पूरे होल चीज़ नूं प्रेजेंट करता है। लाइक क्राउन एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसकी आप क्राउन एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्राउन है जो किंगडम नूं शो कर रहा है। ठीक है जी, सेम एज। हाँ जी, इसका राइट आंसर आएगा जी 121 का लास्ट वाला हैगा सिनिक सिनेकडॉक। SYNECTOCHE। नेक्स्ट, what is the literary term for occurrence of the same sound at the beginning of adjacent words। हाँ जी, ये भी कराया सीगा मैंने। ये टर्म है जो दो बार पाई सी मैं अलग अलग डिफरेंट उसकी मोल्डिंग करके। हाँ जी, सेम एज इन्होंने भी मोल्ड करके पता। इसका राइट आंसर है जी एलिट्रेशन। रिपीट होंदियां ने वही टर्म्स। नेक्स्ट 123, what is the comic satirical exaggeration of certain striking characters of a person called। हाँ जी, ये टर्म नवी हैगी अपने लिए। हाँ जी, इसका राइट आंसर है लैम्पसन। लैम्पून। राइट आंसर है लैम्पून, डी। वट डज टर्म पैथेटिक फैलेसी मीनस। हाँ जी, पैथेटिक फैलेसी टर्म मैं करवाई है, तुहानूं दस्सिया भी सीगा किहड़े राइटर द्वारा यह पैथेटिक फैलेसी दी गई है। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हैगा वो है असाइनिंग ह्यूमन इमोशंस टू इनएनिमेट वर्ड। नेक्स्ट, वट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एपिक जेनर। हाँ जी, एपिक बारे जेनर बारे किहड़ी चीज़ सही नहीं है? हाँ जी, सही देख लो पहला, सही नहीं है। हाँ जी, नरेटिव मोड हुंदा है इसका। आफ्टर दैट लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी इस हुंदा है। सुपरनैचुरल एलीमेंट्स भी होंगे नेगे। तुसीं बहुत ज़्यादा एपिक्स ने जो पढ़े नेगे। हाँ जी, इसका जो रॉन्ग आंसर हैगा स्टेज प्रेजेंटेशन इस दे विच नहीं होंगी। स्टेज प्रेजेंटेशन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जॉन इन द सेंटेंस। हाँ जी, एक ध्यान दियो, ये फ्रेज स्ट्रक्चर रूल के अकॉर्डिंग पूछा इन्होंने, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के विच यही मिसटेक होगी क्योंकि उन्होंने फ्रेज स्ट्रक्चर ध्यान नहीं दिता होना, क्योंकि इस लिखा है फ्रेज स्ट्रक्चर। इट मीनस फ्रेज स्ट्रक्चर रूल दे उसके अकॉर्डिंग देखना सी कि जो जॉन है सेंटेंस, जॉन सेंटेंस है जी जॉन हिट द बॉल। इस जॉन है जो किस चीज़ को रिप्रजेंट कर रहा है। ऑप्शन सी थोड़े सब्जैक्ट, नाउन, NP, नाउन फ्रेज और नन ऑफ द वर्ब। तो इस आना सी जी NP, नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन फ्रेज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, वट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सोशोलिंग्विस्टिक। सोशोलिंग्विस्टिक का पूरा डिटेल के टॉपिक मैं सेंड किया होया, अपलोड किया हुआ ऑलरेडी। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने पढ़िया होना वो बेनीफिशियल हो गया होगा उन्होंने। हाँ जी, इसका राइट आंसर है जी सी, डील्स विद द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन लैंग्वेज। हाँ जी, देखो नाम तो ही पता लगता है, सोशो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, सोशो सोसाइटी, सोसाइटी प्लस लैंग्वेज।
हाँ जी, तो थर्ड ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नैक्सट वट इज़ डायलैक्ट, हाँ जी पूरा टॉपिक पाया हुआ मैंने डायलैक्ट का, एक्सेंट का और रजिस्टर का, सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर दे विच। हाँ जी, डायलैक्ट की हुंदा है? डायलैक्ट हुंदा जी अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज टिपिकल ऑफ वन रेन। हाँ जी, एक एरिया का जो वे ऑफ टॉकिंग हुंदा है, आ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज हुंदी है, उसनूं की कहा जाता है? डायलैक्ट। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन 129 वट डज एक्सेंट रेफर टू, एक्सेंट की हुंदा जी? 129 हाँ जी, ये तुहानूं पता ही है, भी दस्सिया मैंने पहला, द वे वन प्रनाउंस द वर्ड्स। हाँ जी, किसी दे वर्ड्स नूं प्रनाउंस करन दा जो वे हुंदा वो हुंदा एक्सेंट। मूव टू नैक्सट 130 वट डज टर्म रजिस्टर। हाँ जी, देखो डायलैक्ट, एक्सेंट, रजिस्टर, सोशल लिंग्विस्टिक सारा कुछ करवा रखे, अपलोड हैगी वीडियो। हाँ जी, 130 का आंसर आएगा जी, इसका आंसर आएगा बी, बी ऑप्शन राइट है जी। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर अ पर्टिकुलर परपज। हाँ जी, जो पर्टिकुलर परपज के लिए यूज किया जाता है उसको कहा जाता है रजिस्टर। लाइक आप कह सकते हैं प्रोफैशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज, टीचर्स की लैंग्वेज, लॉयर की लैंग्वेज, ये सारिया की ने एक रजिस्टर है। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट फ्लैक्सीबल ऑर्गन ऑफ स्पीच। हाँ जी, ऑप्शन तो ही तो पता चल गया होगा कि अपना जो ऑर्गन ऑफ स्पीच का फ्लैक्सीबल की है, सॉफ्ट पैलेट फ्लैक्सीबल नहीं है, अपर लिप फ्लैक्सीबल नहीं है इन्ना, क्योंकि उसमें आप हर जगह पर नहीं फोल्ड कर सकते है। लोअर लिप भी नहीं है, टंग है जो फ्लैक्सीबल है। डी इज राइट आंसर, टंग। 132 वट आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद बोथ द लिप्स कॉल्ड। हाँ जी, दसिया सी तुहानूं मैं MCQ जो पाए हुए ने लिंग्विस्टिक दे सेंड किए हुए ने, उस दसिया सीगा कि जो दो लिप्स नूं यूज करते हैं आप, बोथ लिप्स आर टच टुगैदर, तो किहड़े साउंड्स प्रोड्यूस होंदे नेगा? बाईलेबियल, बाईलेबियल। 133 हाँ जी, हाउ मैनी डिपथोंग्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश दे विच किन्ने डिपथोंग्स होंदे नेगे? हाँ जी, अगर मोनोपथोंग पता नहीं तो डिपथोंग पता होएगा, एक पता है तो दूसरे का आंसर अपने आप पता चल जाएगा। हाँ जी, 8 डिपथोंग, टोटल 12 अपने मोनोपथोंग होंदे ने और 8 है जो अपने डिपथोंग होंदे ने। हाँ जी, मूव टू नैक्सट क्वेश्चन वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट फोनीम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश दे विच किन्ने कॉन्सोनेंट फनीम ने, तो तुहानूं पता ही होगा, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। 24 टोटल 44 साउंड होंदे ने अपने, जिस दे विचों 20 अपने वाउल्स होंदे ने और 24 है जो अपने कॉन्सोनेंट्स होंदे ने। नैक्सट क्वेश्चन हाउ इज़ द वाउल फोनीम इज इन वर्ड सीन डिस्क्राइब। हाँ जी, सीन है जो वर्ड उसनों आपां किवें डिस्क्राइब करांगे? इज द राइट आंसर है जी डी, सीन नूं प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा वाउल के अकॉर्डिंग। फ्रंट, क्लोज एंड अनराउंड, अनराउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलेबियल। हाँ जी, बाइलेबियल भी होवे और वॉइसलैस प्लॉजिव भी होवे, केड़ा जी? बहुत ईजी है, ये दो क्वेश्चन मिक्स करके किया हुआ। हाँ जी, इज द राइट आंसर है जी प। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी एफ्रीकेट फोनीम आर इन देयर इन इंग्लिश। हाँ जी, ऑलरेडी मैं दसिया होया तुहानूं पहला, लिंग्विस्टिक दे विच क्वेश्चनस ने उही सारे सेम क्वेश्चन हैगे ने पेपर दे विच तुहाडे। हाँ जी, राइट आंसर आएगा 2। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द फाइनल फोनीम इन इंग्लिश वर्ड सिंग डिस्क्राइब्ड। हाँ जी, सिंग वर्ड है उसके जो फाइनल फोनीम है उसनों आपां किस तरीके नाल डिस्क्राइब करांगे? इज द राइट आंसर आएगा जी सी, वॉइस्ड, व्हीलर, नेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाउल फोनीम इज कॉल्ड श्वा। हाँ जी, श्वा केड़ा अपना वाउल फोनीम हैगा? इसका जो राइट आंसर हैगा ए इज द राइट आंसर है श्वा। मैं पहला भी दसिया होया थोड़ा जो लिंग्विस्टिक दे कीते सी आपां ये क्वेश्चंस। हाँ जी, इसका राइट आंसर हैगा ए, मिड सेंट्रल वाउल इन वाउल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 what does term pulmonic aggressive airstream
mean in description of sounds? हाँ जी, ये क्वेश्चन सेंड किया होया सी मैं पहला। हाँ जी, इसका राइट आंसर आएगा डी, एयर कमिंग आउट ऑफ द लंग्स। हाँ जी, जो एयर लंग्स तो आती है तो उसको कहा जाता है पल्मोनिक एग्रैसिव एयर स्ट्रीम। 141 वट फॉर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ साइन। हाँ जी, साइन के लिए केड़ी चीज़ है जो ट्रू नहीं है? ऑप्शन सी तुहाडे इनकम्युनिकेट्स, ट्रू है जी, कम्युनिकेट के लिए काम आते हैं साइन। इट इज़ कन्वेंशनल भी ने ये, इट इज़ डायडिक भी ने, इट इज़ लॉजिकल नहीं जी, इट इज़ नॉट लॉजिकल, ये रॉन्ग हैगा, बी इज़ रॉन्ग। मतलब कि राइट आंसर बी हैगा, साइन की यह एक सिम्योटिक साइन का जो एक ये सच्चाई नहीं है, बी इज़ राइट आंसर। 142 आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट फनीम नेम। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर आएगा जी बी। मेरे अकॉर्डिंग है जो 99% है जी, इसका जो राइट आंसर हैगा बी, पैसिव आर्टिकुलेशन। हाँ जी, आर्टिकुलेटर और आर्टिकुलेशन जो मर्जी कह लो तुसी। हाँ जी, पैसिव आर्टिकुलेटर 99% राइट है, बाकी आंसर की तो देख लांगे। नेक्स्ट, विच इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द वर्ड्स एंड द रूल्स ऑफ देयर फॉर्मेशन। हाँ जी, किता जी इसका बहुत पूरी डिटेल दे विच टॉपिक है जो मैं सेंड किया होया, अपलोड किया होया ऑलरेडी यूट्यूब पे। हाँ जी, जो 143 है इसका राइट आंसर आएगा जी मॉर्फोलॉजी। लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक कह रहे हैं आप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी ऑफ मॉर्फीम्स डू द प्रीफिक्सिस। हाँ जी, प्रीफिक्स मॉर्फीम की वीडियो पूरी डिटेल दे विच सेंड की हुई है, उस दे विच मैं दस्सिया होया कि जो प्रीफिक्सिस होंदे ने वो की होंदे ने, पूरी डिटेल च दस्सिया होया है। हाँ जी, इसका राइट आंसर है जी बाउंड मॉर्फीम होंदे ने, बाउंड मॉर्फीम प्रीफिक्सिस। नेक्स्ट, which is the branch of linguistics that deals with mental aspect of language। हाँ जी, mental aspect of language। हाँ जी, ये भी टॉपिक सेंड किया होया ते सेम लाइन डिटो मैंने दसी हुई है उत्थे कि केड़ी चीज़ हुंदी है, किसनों कहा जाता है, साइको लिंग्विस्टिक्स। डी ऑप्शन राइट आंसर है, साइको लिंग्विस्टिक्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 146। देखो जी, सारी लिंग्विस्टिक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ने अपलोडेड वीडियोज़ दे विच आए ने, जिन्होंने देखिया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया होगा। गिव 3 टर्म्स डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट फोनीम इन इंग्लिश वर्ड सिप। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हैगा, इसका राइट आंसर है ए, वॉइसलेस, एल्वियोलर, फ्रीकेटिव। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स folds? What is the position of vocal folds while producing voiced sound? हाँ जी, जो वॉइस साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वोकल फोल्ड्स ਦੇ जो किमें पोजीशन हो जाती है उन्होंने, इसका राइट आंसर आएगा जी सी, लूजली हेल्ड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्टिव रिक्रूटमेंट फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड? हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हैगा बी है, कंप्लीट और पार्शियल क्लोजर ऑफ एयर पैसेज। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टंग शेप एंड पोजीशन ऑफ लोअर जॉ ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द मोनोपथोंग्स? हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है जी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट चेंजेस मूव टूवर्ड्स क्लोज पोजीशन। Move to last question 150. What is the significant feature of plosive consonants? हाँ जी, इसका की significant feature है, इसका right answer आएगा जी B, complete closure and sudden release। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप तुहानू वीडियो पसंद आई होगी, पेपर बहुत ईजी सीगा। गुड लक फॉर योर रिजल्ट, थैंक यू।